हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईशान सिंह लेट्स गेन नॉलेज। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस के टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। So coming to the topic holozoic nutrition, that is engulfment of solid piece of particles. Okay, so it is divided into 5 parts, that is steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Ingestion, it means that a taking of food with the help of temporary teeth. Okay, digestion, this conversion of complex organisms that we are eating into simple digested food. Okay, so absorption, it is that absorbed food is now transported to all body parts. Assimilation, the conversion of absorbed food into the constituents for the taking energy. Egestion, the undigested components of food is now thrown out of the body. That this undigested food is known as egestion. Okay, now coming to the topic ingestion. This part we are not discussing because this does not include in our video. So first is egestion. Through the mouth, with the help of mouth, human being ingest or take in food. Second part is digestion. The teeth help in physical digestion of food. Second is mouth, जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस में यूज होता है, यानी कि इसका यही काम है कि मुंह में हमारे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करता है, जो स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है और उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। नाउ जो हमारा फूड है वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट। नाउ द फूड हैज बीन एंटर इन द स्टमक. Gastric gland secretes gastric juice contain hydrochloric acid, pepsin and mucus. Okay, so we will now test it the work what is done by these gastric glands. First is hydrochloric acid. It makes the medium acidic so that pepsin can work. It stops the function of salivary amylase, kills the bacteria. Now coming to the next, that it's pepsin. It converts protein into peptones and peptoaces. Okay, now third is mucus. Mucus is a form of enzyme which forms carbohydrate wall inside the stomach so that pepsin cannot act on stomach as our stomach is made up of protein. अगर प्रोटीन एक्ट कर जाता है हमारे स्टोमक पर तो हमें पेप्टिक यूक्लियर्स हो जाते हैं. ओके, सो इसलिए कार्बोहाइड्रेट वॉल बनाता है हमारा म्यूकस. अब यहाँ तक जो हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है उसे हम कहते हैं काइम. ओके, नाउ अब हमारा फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. नाउ व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ सीट ऑफ मैक्सिमम डाइजेशन वेयर ऑल द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स आर secreted. That is known as succus entericus. Okay, now in the small intestine all the work is done by the villi. Villi is a finger like projection which is used for the seat of maximum digestion for absorption of food. So small intestine is divided into 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. For what is duodenum? Duodenum secretes alkaline mucus, help in neutralizing the chyme. Second, bile juice secrete करता है. जो bile juice का काम क्या होता है? वो हमारा एल्कलाइन बनाता है, न्यूट्रलाइज करता है और फैट को फाइन ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है जिसे हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. और ये कौन सिक्रीट करता है? लिवर सिक्रीट करता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. Now what is pancreatic juice? Pancreatic juice is also a type of enzyme which also secrete 3 types of enzyme, that is pancreatic amylase, lipase and trypsin. Okay, so starch and dextrins act on maltose and convert into maltose, and lipase act on fat, convert into fatty acids, and trypsin act on protein and peptones, convert into peptides. Now move to jejunum. Jejunum is the seat of maximum digestion. यहाँ पर कोई भी डाइजेशन जो होता है वो 4 एंजाइम्स के थ्रू होता है, जो हमारा इरिप्सिन, इन्वर्टेज, मैल्टेज एंड लैक्टेज होता है. हम इनको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं पूछा जाता. ओके, so coming to the next part of small intestine, that is jejunum. It is a seat of maximum digestion. यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डाइजेशन होता है और इसमें कई सारे ग्लैंड सिक्रीट होते हैं जैसे इरिप्सिन, इन्वर्टेज, मैल्टेज एंड लैक्टेज. इनका ज़्यादा काम नहीं है, यानी कि हमारा काम तो है इनका हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता. सो अब हम आते हैं इलियम के ऊपर. इट एब्सॉर्ब द फूड बाय टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ विलाई, यानी कि इसमें सारा काम किसका होता है? विलाई का. अब यहाँ पर इलियम का भी काम खत्म हो गया. अब हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. ओके, व्हाट इज लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन इज अ इंटेस्टाइन व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज सेकम, कॉलन एंड रेक्टम. व्हाट इज सेकम? सेकम इज अ वर्मी कंपोस्ट वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि हमारी बॉडी में था है पर इसका कोई काम नहीं है. ओके, ये कोई सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता. अब आता है कॉलन. इट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एंड कन्वर्ट इनटू फीकल मैटर, यानी कि अब जो वाटर के न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये से एब्सॉर्ब करता है और फीकल मैटर में कन्वर्ट कर देता है. नाउ कम्स रेक्टम. इट कन्वर्ट्स फीकल मैटर, इट कलेक्टेड एंड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू ओपनिंग कॉल्ड एनस, यानी कि जो रेक्टम का काम है, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो फीकल मैटर में कन्वर्ट हुआ है थ्रू द कॉलम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अब इसे एनस के थ्रू बाहर क्या कहते हैं? फेंक देता है, यानी कि ये थ्रोन आउट कर देता है. नाउ टिल देयर इज अ कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. यहाँ तक हमारा वीडियो कन्वर्ट खत्म हो चुकी है. सो आई थिंक दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक so that new notification video can come. Thank you all of you.